Good morning, everybody. Mental health is the taboo subject. कि हम थोड़ी पागल है. So it is dismissed outright, not realizing the impact it has on our day-to-day life. To understand mental health and physical health, because whenever we say health, we think immediately of only physical health. And we don't even think about mental health. Of course, beyond that, there is emotional health, there is social health, and there is spiritual health. We are not talking about all that now. Just talking about mental health. So what is the relationship between the two? We have a mind and we have a body. Physical cause है, physical effect होगा. बुखार आया, इन्फेक्शन हुआ, बुखार आएगा. फेल हो गया, उदास हो जाएगा. चोट लगी, फ्रैक्चर होगा. किसी ने गाली गलौज किया, गुस्सा आएगा. That all we know. But there is a cross connection between the two. Many a times there is a mental issue with physical effect. These are called psychosomatic diseases. They are diseases of the body. Origin is in the mind. Examples: high blood pressure, diabetes, peptic ulcer, bronchial asthma, rheumatoid arthritis, migraine, irritable bowel syndrome, and what not. One of our teachers at the doctor's conference got up to say that 60 to 80% of the illnesses have mental origin. So a physician got up to speak after him and he said, I don't agree with Dr. So-and-so. So सब घबरा गए कि ये दोनों में बहस छिड़ जाएगी. He said it's not 60 to 80%, it is 90%. Coming from the mouth of a physician. मतलब हमको इसके बारे में मालूम ही नहीं है. What we do, we take the medicine, block it, and we are satisfied. Not enough. It has to be followed by removing the mental cause. And we don't even know the mental cause. We don't even know that there is a mental cause. So how will we handle it? Anyway, that's not the subject topic today. Second is, many times there is a physical cause with mental effect. Now we are not aware of this. What is the physical cause? We have several nerves in the body. At the junction of the nerves, in the gap, there are chemicals. They are called biochemical neurotransmitters. What is their job? To convey the message from one nerve to the other. Now sometimes there is an alteration in that chemical level. So the message doesn't pass properly, and this leads to some mental symptoms. But because the symptoms are mental, we start searching for a cause in the situation. ऐसी क्या खराबी है कि जिसके वजह से ये mental symptoms आते हैं. But really, where is the cause? The cause is in the body. Now, it is very important to know कि ये जो mental symptoms आए और suicide उसमें से एक है. वो कहाँ से आया? यहाँ से आया या यहाँ से आया? ये जानने की ज़रूरत क्यों है? Then we know how to treat and what to treat. जैसे बुखार है ना, बुखार टीबी में भी आएगा, मलेरिया में भी आएगा, टाइफाइड में भी आएगा. पैरासीटामोल तो सिर्फ बुखार को उतार देगी, लेकिन अगर उसको क्योर करना है, then what we have to do is treat the cause. Give the appropriate antibiotic to kill the germs causing the fever. अभी अगर हमको ये राइट डायग्नोसिस मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको ठीक करने के बजाय इसको ठीक करने लगेंगे. And that is not going to have any impact, any effect. So that is why it is very necessary to know about mental health. क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है. In these psychotic illnesses, the treatment is medicine. But in these illnesses, neurotic disorders or personal disorders, treatment is psychotherapy. अब हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम इधर का है, इलाज ये कर रहे हैं, तो नतीजा नहीं मिल रहा है. लाइक समझो किसी को डिप्रेशन है, एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द केमिकल इम्बैलेंस. हम क्या कहते हैं? जरा हवा फेर करके आओ, जरा हिम्मत करो,
हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? It is as good as telling a person who has fracture, why not do vigorous exercise? You'll get okay like this. Do we ever tell that? This is exactly what we are doing. Because we don't know that this symptom is arisen from here. And we keep on recommending these measures, which is not going to work. तो इसमें there are 3-4 different types of chemicals. That is why there are 4 different types of illnesses. But one illness is very common and usually not recognized, and that is depression. डिप्रेशन मानी हम क्या समझते हैं कि एग्जाम में फेल हो गया, उदास है, कुछ फ्रैक्चर हो गया, प्लान्स बिगड़ गए, उदास है. वी ऑलवेज जस्टिफाई द सैडनेस कि कोई परिस्थिति की वजह से वो है, हालांकि ये जो सैडनेस है वो उसके वजह से नहीं है, इसके वजह से. तो ये जो उदासी है वो एक सिम्टम है इस बीमारी का, डिप्रेशन. साथ साथ क्या होता है, देयर आर क्राइंग स्पेल्स. वो रोना रोक नहीं पाता है, मरने की इच्छा होती है. तो सुसाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर द डिप्रेशन. और अगर तुमने इसको पहचाना ही नहीं तो ये अपना काम कर जाएगा. आप कहेंगे हम तो बच्चे से डील कर रहे हैं, हमको ऐसी बीमारी के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है. यू डोंट नो. जब हम पढ़ाई करते थे, द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ दिस इलनेस वॉज लेट 20s, अर्ली 30s. दैट वॉज द टिपिकल एज ऑफ ऑनसेट. टुडे द एज ऑफ ऑनसेट इज रिड्यूस्ड. इट इज सीन इन चिल्ड्रन ऑल्सो. करीब 25-30 साल पहले मैंने एक 11 साल की लड़की के में ये सब चिन्ह देखे थे. वो सरप्राइज कि इतनी उम्र में ये सब कैसे आया. लेकिन आजकल वी सी सो मेनी ऑफ दीज केसेस, एंड यू एज टीचर्स, इफ यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस, इज गोइंग टू हार्म द स्टूडेंट. माई यंगेस्ट पेशेंट इज 1.5 years old, and he had bipolar. Bipolar मानी वो सेरोटोनिन, when it reduces it causes depression, when it increases it causes mania. तो कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया. तो दिस इज कॉल्ड bipolar mood disorder, and depression is a part of that bipolar mood disorder. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती है, सुसाइड्स होते हैं, उसका कारण ये केमिकल इम्बैलेंस है. और इसको अगर हम नहीं पहचान पाए तो ये अंजाम आ सकेगा. सुशांत सिंह राजपूत 4 साइकियाट्रिस्ट से मिला था. 3 को तो मैं पहचानता हूं. ये सुसाइड क्यों आया मालूम है? His girlfriend was dissuading him from taking medicines. वो कुछ और तरीके से उसको सुधारना चाहती थी. इलाज मिला, फिर भी इलाज बंद कर दिया, तो ये अंजाम आ गया. तो इसकी गंभीरता हम सीखे. इट इज अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ. बच्चों में कैसे पहचाना जाए ये डिप्रेशन से पीड़ित है क्या नहीं? तो जो स्टूडेंट बहुत खेल दिल था, सबसे मिलता जुलता था, सबसे बातें करता था, वो अचानक विड्रॉ करने लगे. किसी से मिलने जुलने की नहीं, बात करने की नहीं है, स्कूल से आने से मना कर दे. व्हाट वी यूजुअली से स्कूल फोबिया. स्कूल का टाइम होता है, रोने लगता है, नहीं आना है, तो हम ढूंढते रहते हैं क्या टीचर डांटते हैं या बाकी सब स्टूडेंट तुम्हें सताते हैं. वी ऑलवेज थिंक ऑफ अ सिचुएशनल कॉज. इसका तो डाउट ही नहीं जाता है. तो दिस रिफ्यूजल टू गो टू स्कूल, इमीडिएटली यू शुड बी अलर्टेड. शायद इसको ये बीमारी लग चुकी है और फिर उसका उचित इलाज करना ज़रूरी है. ये नहीं करेंगे
तो आगे चल के सुसाइड तक पहुंचेगा। और सुसाइड का सबसे बड़ा खतरा कब है? डिप्रेशन में। एंड आई मीन एंडोजेनस डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिएक्टिव डिप्रेशन, मैंने सिचुएशन की वजह से जो उदासी आती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कि ये जो डिप्रेशन का एपिसोड आता है, इट्स अ पैराबोलिक कर्व। शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया, मैक्सिमम पहुंचा, फिर अपने आप घटता है, फिर निकल जाता है। कितना रहता है? द रेंज इज ह्यूज, वेरी वाइड। वन एपिसोड में लास्ट 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, टू इट में लास्ट लॉन्ग एज 10-15 ईयर्स। सो वाइड वेराइटी है। एवरेज ड्यूरेशन 6 महीना है। दैट्स वाई वी गिव ट्रीटमेंट फॉर 6 मंथ्स। अब ये एपिसोड शुरू होता है तो शुरू में देयर इज सैडनेस, देयर इज क्राइंग स्पेल। इसके 3 अहम चिन्ह हैं: सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन। सैडनेस ऑफ मूड मानी मन उदास रहता है। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज मानी मन खाली रहता है, विचार नहीं आते हैं। The person cannot think, he cannot reach a decision because the mind is blank. And third, psychomotor retardation मानी सब काम धीरे धीरे होने लगते हैं। बोलना, चलना, सोचना, ये सब काम धीरे हो जाते हैं। अब क्या होता है, वो उदासी शुरू हुई, अभी तक साइकोमोटर रिटार्डेशन आया नहीं है, बाद में आता है। अब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, द इंटेंसिटी ऑफ सुसाइड आइडियाज इंक्रीजेस, बट what prevents the person from committing suicide or attempting suicide is the psychomotor retardation. उसको मन तो कर रहा है आत्महत्या करने का, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? दैट सेकेंड सिम्टम साइकोमोटर रिटार्डेशन उसको प्रिवेंट करता है। तो अभी तक साइकोमोटर रिटार्डेशन नहीं आया तो तभी चांसेस ज़्यादा है। और जैसे उसका सुधार होता है तो पहले जाता क्या है, तो साइकोमोटर रिटार्डेशन, बाद में उदासी जाती। सो नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस पीरियड ऑल्सो, सुसाइड आइडिएशन है, साइकोमोटर रिटार्डेशन उसको रोकने के लिए नहीं, तो उधर डेंजर आ जाता है। जैसे कभी सुनते हैं कि अरे इसका तो बीमारी अच्छी हो रही थी, अचानक क्या है इसने किया, ऐसा क्यों हुआ? जैसे आशा भोसले की बेटी, शी वॉज इम्प्रूविंग एंड सडनली शी कमिटेड सुसाइड। व्हाई? दिस गैप। तो सबसे बड़ा खतरा ये 2 पीरियड में है, वहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आप एज टीचर इन अ चाइल्ड कैन ईजिली डिटेक्ट दिस बाय द चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। दिस इज वन टाइप ऑफ डिप्रेशन which is most responsible for the suicide, but we cannot neglect the reactive depression. वो क्यों है? वो सिचुएशन की वजह से है। और स्टूडेंट तो माँ बाप की सब बातें मानता है, टीचर की सब बातें मानता है, तो दे आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर द स्टूडेंट, फॉर द चाइल्ड। आपके शब्दों से भी या आपके वर्ताव से भी उसको कितनी गहरी चोट पहुंचेगी आपको अंदाज भी नहीं। शायद वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो आपने तो बोल के भूल गए, पर चोट उसके जो दिमाग पे लगी वो उसको, ही विल बी मेंटली क्रिपल्ड। Responsible कौन? We had one teacher here temporarily. He was very demoralizing, very demotivating. Good, he is not there. I am sure all of you know who this person is. Why? Untrained. तो आप तो टीचर्स हो, आपको तो ट्रेनिंग मिली है। Please give importance to this also, because आप जो व्यवहार करेंगे, उसके साथ बिहेव करेंगे, वो कैसे लेने वाला है आपको मालूम भी नहीं है।
तो ये जिम्मा बनता है टीचर्स का। तो नॉट ओनली हैंडलिंग बट ऑल्सो डिटेक्टिंग क्या, एनी चेंजेस इन द बिहेवियर, देन यू शुड इमीडिएटली अलर्ट द पेरेंट्स. Of course, all said and done, the responsibility of the treatment is with the parents. But because you are in contact with the student, you can easily pick it up. The parents may miss it. Most parents are absent at home. So you are the ones who will be able to detect it the earliest. लेकिन इसके बारे में अगर मालूमात नहीं है, तो though the science may be there before you, you may not be able to reach the right conclusion and take the appropriate measures. So my job here was to alert you कि suicide prevent कैसे किया जाए by early picking it up. और फिर किस वजह से है डिप्रेशन, that will depend upon what is the origin of that depression, which is none of your business. Your business is to detect it and refer the person to the appropriate authority on that subject, right? We can ask a few questions to clarify what I have just said.